हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स अगेन। दोस्तों कल यानी कि 24 फरवरी ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ satsang ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। satsang ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਤੇ ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ satsang ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ 4 ਵਜਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾ ਹੂੰ, ਕਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ। ਤੇ ਫਿਰ 2-3 ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट होया। कुछ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बॉय ने पूछा, बाबा जी मुझे अपने अंदर की आवाज़ें बहुत परेशान करती हैं बाबा जी, और जब ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो मैं अपना ध्यान सिमरन पे नहीं लगा पाता, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। बाबा जी ने कहा कि जो भी हमारे ऊपर ध्यान आते हैं ये हमारे मन के ऊपर जो प्रभाव पड़े होते हैं उसकी वजह से। मन का मकसद ही यही है कि इन सब चीज़ों को सामने रखना, तो आप ये सब चीज़ों पर ध्यान ना दें, आप सिमरन के ऊपर ध्यान दें। जब हम ध्यान देते हैं तभी वो बार बार हमारे सामने आती हैं। आप अपना ध्यान सिमरन के ऊपर रखें, सिमरन के ऊपर रखेंगे तो सब साफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी बॉय ने पूछा कि बाबा जी मेरी 4 बार सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो क्या मैं पहले की तरह चल पाऊँगा या मुझे किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तो आपके ऊपर मुनस्सर है, जैसे अगर इंसान हिम्मत रखेगा तो जैसा आम आदमी चाहता है आप भी वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीबी जी ने पूछा, बाबा जी भजन सिमरन बहुत पिछे पै गया। बाबा जी ने फरमाया ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿ ਨਿਭਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣੀ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਛੱਡਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਇਆ ਮਹਿਰ ਕੀਤੀ ਆ ਐਦਾਂ ਹੀ ਦਇਆ ਮਹਿਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬਣਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੀਸਿਟਿੰਗ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸਿਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਹੱਸ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲਗਨ ਲਗਾਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਆਸ਼ਾ ਜਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਸੋਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ 10-10 ਮਿੰਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਬਣ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਆਦਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बॉय ने पूछा कि बाबा जी अगर कोई दूसरों की देखभाल करता हो, सबका ख्याल रखता हो, फिर भी उसको दुख पहुंचे, इसका क्या कारण है? तो बाबा जी ने फरमाया, बेटा हम क्यों इन चीज़ों को गिनती में लाते हैं? देखो आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ होगा वो आपके कर्मों का हिसाब किताब है। आपका लक्ष्य क्या है कि हम कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म कर सकें, तो मिलेगा वही जो आपके कर्म हैं बेटा, तो आप गिनती में मत लाएं। हमारी तो ऐसी सोच होनी चाहिए कि आपने तो सबका भला सोचना है। अगर कोई हमारा बुरा करेगा तो ये उसके कर्म होंगे, अगर हम बुरा करेंगे तो ये हमारे कर्म होंगे। सो ये तो हम अपने कर्मों का हिसाब किताब दे रहे हैं। फिर उसी लड़के ने कहा कि बाबा जी जो हमारे बुरे कर्म होते हैं तो क्या वो इसी ज़िंदगी में पूरे करने होते हैं? बाबा जी ने कहा कि डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा नहीं है तो ख़त्म हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा है तो फिर मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक गर्ल ने पूछा, बाबा जी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसका कोई हल ही नहीं होता, तो क्या हमें उस टाइम माइंड से सोचना चाहिए या हर्ट से? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा माइंड भी और हर्ट भी दोनों उस मालिक ने विवेक दी है ना, तो हमें विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। मन प्रभावित हो जाता है, जो हमारा सो कॉल्ड हर्ट है वो भी सेंटिमेंटल होके चलता है। सो मालिक ने विवेक की ताकत दी है, उस विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए सही क्या है। बाबा जी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि बाबा जी जिन्होंने नामदान नहीं लिया है वो नाम कैसे जपें? बेटा उतना चिर अपनी नींव बनाओ, अपने ग्रंथों पोथियों को पढ़ो, समझने की कोशिश करो कि किस रास्ते पे हम चलना चाहते हैं, क्या उसूल हैं, क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक भाई ने पूछा, बाबा जी जैसे कहा जाता है कि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा इकलौता जन्म है जिसमें हम नामदान लेकर इस 84 से मुक्ति पा सकते हैं भजन सिमरन करके, और अगर कोई इंसान है जो बेड पे है और एडल्ट हो चुका है, बीमार है, उसके पेरेंट्स उसकी सहायता करते हैं, तो ऐसे मनुष्य जन्म का क्या, वो कुछ नहीं कर पा रहा। बाबा जी ने बड़े प्यार से फरमाया कि बेटा ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी, मालिक जो कुछ भी करता है सोच समझ के करता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा था, कर्म प्रधान, जो भी अवस्था है तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब। अब ये कहना कि किसी एक संस्था से जुड़कर हमें मुक्ति मिलेगी तो ये हमारी गलत फहमी है। सो भक्ति की बात है, दिल सच्चा होना चाहिए। अगर सच्चे दिल से हम उसके साथ रिश्ता जोड़ेंगे, उसको याद करेंगे, तो अपने आप उसकी बख्शिश होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक गर्ल ने पूछा कि बाबा जी मुझे पाठी बनना है लेकिन मुझे ट्यून नहीं आती। तो संगत मुस्कुराई। बाबा जी कहते मेरे को भी ट्यून नहीं आती। उसने फिर कहा बाबा जी मुझे पाठी बनना है। बाबा जी ने कहा पाठी के बजाय आप सत्संग करता बन जाओ। तो संगत मुस्कुराई। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे पाठी अच्छा लगता है। बाबा जी ने फरमाया बेटा जरूरी तो नहीं हम सब ने पाठी बनना है, कोई सत्संग करने वाला भी तो चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी ने पूछा कि बाबा जी जब मैं सेवा करने आती हूँ या सत्संग सुनने आती हूँ तो मम्मी पापा से झूठ बोल के आती हूँ, तो क्या ये सही है? संगत में हंसी। बाबा जी ने कहा वो आपके दुश्मन है क्या? संगत फिर हंसी। तो उसने कहा बाबा जी वो मना भी करते हैं लेकिन फिर भी मैं आ जाती हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा बता के आना चाहिए, देखो बच्ची तो हर एक परिवार का मान होती है ना, अगर आप लेट हो गए, वो घबरा गए, फिर अच्छा नहीं होता ना। बता के जाओगे तो उनको ये तसल्ली तो होगी ना कि चलो सत्संग घर गई है। तो जाते जाते उसने कहा क्या मैं पाठी बनूंगी? तो संगत फिर हंसी। बाबा जी ने कहा बेटा कोशिश करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या हमें उसका दुख मनाना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि क्यों, दुख तो मनाओ अगर आप ये सोचो कि उसके कर्म बहुत बुरे थे। अगर अच्छा इंसान था तो फिर मालिक के पास चला गया तो हमें दुख क्यों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक गर्ल ने पूछा कि बाबा जी लड़कों की एज नामदान के लिए 21 है और लड़कियों की 25। अगर कोई लड़की 25 की उम्र से पहले नामदान लेना चाहती है तो क्या उसे मिल सकता है? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मकसद ये है कि लड़कियों को दूसरे घर जाना पड़ता है। अब जैसी सभ्यता बनी हुई है कि अगर वो इस चीज़ को नहीं मानते तो लड़की को कोई तकलीफ़ ना हो। सिर्फ इसलिए अगर आप पैरों के ऊपर खड़ी हैं तो आप ठीक समझे आपको मिल सकता है बेटा। और बाबा जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि कई लड़कियां गैर सत्संगी घरों में जाती हैं शादी करके, तो उसके बाद उनको सत्संग आना नहीं मिलता है।
तो इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि इसीलिए तो उनको गैर सत्संगियों के घरों में भेजा है, संगत में हंसी, वहाँ इतना उनको प्यार दें, अपनी जिम्मेवारियाँ निभाएं कि उनको फ़र्क पड़े और वो भी सत्संगी बन जाएं। बाबा जी, गैर सत्संगियों में शादी करना क्या सही है या फिर? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा ऐसे नहीं आपको कभी सोचना चाहिए। मालिक के दरबार में कोई गैर सत्संगी नहीं। ये पता नहीं हमने लफ्ज़ कहाँ से बना लिया गैर सत्संगी। उसके घर में सभी उसके अपने हैं। अच्छे इंसान होने चाहिए। अच्छे इंसान हैं बेटी को खुश रखेंगे। अच्छे इंसान नहीं हैं, फिर चाहे सत्संगी हों, तो बेटी की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो ऐसा नहीं है। मालिक ने हमें इन धर्मों, मज़हबों, ज़ात पात से ऊपर उठाया है, तो हमें और दीवारें नहीं खड़ी करनी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं आपका दोस्त देविंदर सिंह, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। जींदे जी मिल ले असानू, मरन पिछो दे कौन दुहाइयां।